Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So I am your teacher Miss Pooja here again with a new topic. So here we go. So this is our chapter 8, aquatic plants and animals. In the last class we done with our chapter 7. So today we will start with our chapter 8, aquatic plants and animals. So first of all, what aquatic is? Aquatic means the plants and animals which live in water are called aquatic plants and animals. Okay. So today we will learn about these plants and animals who live in water. So let's start. Different plants and animals live in different habitats. First of all, the word habitats means habitat is basically a place where an organism lives. Organisms जैसे human beings, animals, plants, ये सब जो होते हैं वो organism होते हैं और habitats उनके क्या होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. So for example, wild animals, where the wild animals live in the forest. So the habitat for the wild animals is forest. Where we live, हम सब कहाँ रहते हैं? Where the humans live in the home. So home is a habitat for humans. Where the fish live in the water or the pond. So for fish, pond or ocean is a habitat. So different plants and animals live in different habitats. और habitat क्या होता है? A place where an organism lives. So the plants and animals that live on land are called terrestrial plants or animals. Those plants and animals which live on land are called terrestrial plants and animals. जो land पे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Terrestrial plants and animals. Similarly, the plants and animals that live in water are called aquatic plants and animals. और जो plants और animals water में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Aquatic plants and animals. So today we will learn about these aquatic plants and animals. So first of all, we learn about the aquatic plants. There are different types of aquatic plants. The aquatic plants too make their own food with the help of sunlight and carbon dioxide dissolved in water. See, जो aquatic plants होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? जो सनलाइट जाती है वाटर में और जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में, with the help of these aquatic plants make their own food. Some of the aquatic plants are, first is free floating plants. Free floating means जो freely float करते हैं वाटर पे, उन्हें हम बोलते हैं free floating plants. Some aquatic plants float freely on the surface of water in ponds and lakes. They are called free floating plants. Their stems are spongy with a lot of air spaces which help them to float on the surface of water. उनकी स्टेम्स कैसी होती हैं? स्पॉन्जी होती हैं, उनमें एयर होती है, वो एयर की वजह से वो फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे. दे आर नॉट अटैच टू द सॉइल. सेकेंड थिंग इज ये सॉइल से अटैच नहीं होते. दैट्स वाई दे फ्रीली फ्लोट ऑन द वाटर. वाटर हाइसिंथ, इट्स अ टाइप ऑफ प्लांट. वाटर हाइसिंथ, वॉल्फिया, पिस्टिया and duckweed are some free floating aquatic plants. These are some of the free floating aquatic plants. ये नेम है free floating aquatic plants के. वाटर हाइसिंथ, वॉल्फिया, पिस्टिया एंड duckweed. So free floating plants कौन से होते हैं? जो freely float करते हैं वाटर पे. Those plants which float freely on the surface of water are called free floating plants. And these are some of the example of free floating plants. Now come to the second one, rooted floating plants. The aquatic plants which float on the surface of water but whose roots are fixed to the soil are called rooted floating plants or fixed floating plants. See, ये वो plants होते हैं जो वाटर पे फ्लोट तो करते हैं बट ये सोइल से अटैच होते हैं. जैसे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स थे वो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं वाटर में, जैसे पानी का बहाव होता है उसके साथ ही वो बहते रहते हैं, जस्ट बिकॉज वो सॉइल से अटैच नहीं होते, राइट. बट जो रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से अटैच होते हैं, उनकी रूट सॉइल में फिक्स्ड होती है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स. वो फ्लोट तो करते हैं बट एक ही जगह पे. वाई? जस्ट बिकॉज देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल इन वाटर. द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, hollow
एंड लाइट हॉलो मीन्स उसमें होल होता है, उनकी जो स्टेम होती है वो होलो होती है. These stems help the leaves and flowers to float on the surface of water. The leaves are very large and circular in shape. जो leaves होती हैं rooted floating plants की, वो large size होता है उनका और circular होती हैं वो. The oily surface of leaves makes them waterproof. Water lily and lotus are rooted floating aquatic plants. So here are the examples of rooted floating aquatic plants. वाटर लिली एंड लोटस. आपने देखा भी होगा लोटस एंड वाटर लिली. दीज आर कॉल्ड रूटेड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, राइट. आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एंड रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स की रूट्स अटैच नहीं होती हैं सॉइल से, दैट्स वाई दे फ्रीली फ्लोट इन द वाटर सरफेस. एंड रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स की रूट्स फिक्स्ड होती हैं सॉइल से, दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन अ फिक्स्ड एरिया or on a particular area of water surface. Now third is submerged plants. Submerged means जो completely cover है किससे, water से, जो water के अंदर होते हैं. Submerged plants. The aquatic plants that grow underwater are called submerged plants. जो water के अंदर ही grow होते हैं, water के अंदर ही रहते हैं, उन्हें हम कौन से प्लांट्स बोलते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स. दे आर फिक्स टू द सॉइल्स एंड द होल प्लांट इज सबमर्ज्ड इन वाटर. इनकी भी रूट्स किससे फिक्स होती हैं, सॉइल में फिक्स्ड होती हैं. एंड द होल प्लांट इज सबमर्ज्ड इन वाटर मीन्स होल प्लांट इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ वाटर. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स. वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला. कौन से प्लांट्स है ये, सबमर्ज्ड प्लांट्स जो कम्प्लीटली कवर होते हैं वाटर से and they are fixed to the soil. So these are our aquatic plants, free floating plants, rooted floating plants and submerged plants. Now come to aquatic animals. The animals that live in water are called aquatic animals. They have certain adaptations. Adaptations is basically means the physical or behavioral characteristics which helps us to live in our surroundings. जो हमें हमारे सराउंडिंग में जीने के लिए हेल्प करती है, उसे हम बेसिकली एडेप्टेशंस बोलते हैं. ये फिजिकल भी होती है और ये बिहेवियरल भी होती है. मीन्स हम अपने बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हम अपने सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाते हैं. ऐसी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी जिसकी हेल्प से हम अपने सराउंडिंग में रह पाते हैं. सो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके अंदर भी कुछ फिजिकल एडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से वो पानी में सर्वाइव कर पाते हैं. सच एज फिन्स, गिल्स एंड स्केल्स. ये सब फिश में होते हैं. गिल्स आपको पता है जिससे फिश ब्रीथ करती है. स्केल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये होती है हमारी फिश, राइट. ऐसी शेप होती है फिश की. सो ये जो होते हैं ये ऐसे, इसे हम फिन्स बोलते हैं. व्हाट, ये फिन्स होते हैं. और ये जो फिश की स्किन होती है ऐसे टाइप में, ये इसे हम स्केल्स बोलते हैं. और गिल्स तो वो होते हैं जिससे फिश ब्रीथ करती है, राइट. सो ये हम क्या बोलेंगे इस चीज़ को, ये हम बोलेंगे फिश की एडेप्टेशंस. मीन्स फिश की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको हेल्प करती है वाटर में सर्वाइव करने के लिए. These adaptations help them to survive in water, right? So some of the aquatic animals are, first is fish. Fishes have streamlined body. So what the streamline means, ऐसी बॉडी शेप जो हेल्प करती है फिश को वाटर में फ्रीली फ्लो करने के लिए. मीन्स जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है किसी भी थिंग की या फिर किसी भी एनिमल की, बेसिकली वो हेल्प करती है रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में. मीन्स जो वाटर में जैसे फिश फ्लो करेगी तो एयर और वाटर के बीच में जो फ्रिक्शन होएगा उसे रिड्यूस करती है स्ट्रीमलाइन बॉडी. मीन्स फ्रीली फ्लो कर पाती है स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से फिश वाटर में. जो एयरप्लेन होते हैं उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो फ्रीली फ्लो कर पाते हैं एयर में. सो स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स in reducing friction or resistance, we can say, when moving.
So fish have streamlined body. They have fins which help them to swim in water. Fins किस में help करते हैं? Swimming में help करते हैं fish की. They breathe through the gills. जैसे कि मैंने आपको बताया था, गिल्स की हेल्प से फिश ब्रीथ करती है. गिल्स कैन टेक द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. सो दिस इज अबाउट द फिश. नाउ क्रस्टेशियंस. Some aquatic animals like crabs, lobster, shrimps and crayfish have hard shell on their body. इन्हें हम क्रस्टेशियंस बोलते हैं, लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, क्रेफिश, जिनकी बॉडी पे हार्ड शेल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियंस. दे हैव सम स्पेशल लिम्स लाइक फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में एक स्पेशल लिम्ब होता है, एक स्पेशल बॉडी पार्ट होता है लाइक फ्लिपर्स, जिसकी मदद से वो वाटर में ईजिली स्विम कर सकते हैं. लॉबस्टर के बिल्कुल पीछे का जो पार्ट होता है, जैसे कि ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको, इसे फ्लिपर्स बोलते हैं. जैसे ये क्रे फिश में दिख रहा है क्लियरली थोड़ा, ये जो पार्ट है इसे हम फ्लिपर बोलते हैं. ये इसकी मदद से ये इजीली स्विम कर पाते हैं वाटर में. दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. ये भी किससे सांस लेते हैं? अपने गिल्स से. सो जिनकी बॉडी पे हार्ड शेल होता है उन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियंस. नाउ कम टू थर्ड एक्वेटिक एनिमल, aquatic mammals. Whales and dolphins are aquatic mammals. They also have a streamlined body. इनकी भी बॉडी streamlined होती है, जिसकी मदद से ये easily flow कर पाते हैं without any resistance or friction of air and water, and flippers which help them to swim in water. और इनकी बॉडी पे फ्लिपर्स होते हैं, ये फ्लिपर्स होते हैं जिसकी मदद से easily swim कर पाते हैं वाटर में. They do not have any gills. गिल्स नहीं होते इनकी बॉडी में. They breathe through their lungs. ये अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं. They come up to the surface of water to breathe. When they want to breathe, they come up to the surface of water for breathing. So these are aquatic mammals. Now, amphibians. Amphibians basically वो animals होते हैं जो land पे भी रहते हैं और water में भी रहते हैं. Some animals can live both on land as well as in water. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. जो लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं. दे हैव मॉइस्ट स्किन एंड ब्रीथ थ्रू इट इन वाटर. इनकी मॉइस्ट स्किन होती है जिसकी हेल्प से वो ब्रीथ कर पाते हैं वाटर में. दे हैव लंग्स टू. दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स व्हेन ऑन लैंड. जब वो लैंड पे होते हैं तो वो किसकी मदद से सांस लेते हैं? अपने लंग्स की मदद से. सम ऑफ द एम्फीबियंस आर फ्रॉग, टॉड एंड सैलमेंडर. ये एग्जाम्पल्स है किसके? एम्फीबियंस के. टॉड, फ्रॉग एंड सैलमेंडर. टॉड फ्रॉग की ब्रीड का होता है, ये नेम अलग होता है. एंड सैलमेंडर लिजार्ड जैसा होता है, बेसिकली लिजार्ड जैसी शेप होती है इसकी, सैलमेंडर की. सो दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं. नाउ कम टू फिफ्थ, वाटर बर्ड्स. सम बर्ड्स स्विम इन वाटर. डक्स, pelicans, geese and swans are some example of such water. जो किस में स्विम कर सकती हैं? वाटर में, इसलिए इन्हें वाटर बर्ड्स कहा जाता है. These birds are called water birds. They have special webbed feet which help them to swim in water. इनके जो फीट होते हैं वो बेसिकली वेब्ड होते हैं, मीन्स जो इनके टोज़ होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी हेल्प से वो स्विम कर पाती हैं. आपने देखा भी होगा जब ड्रॉ करते हैं इनके फीट तो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, राइट. डक के आपने फीट देखे होंगे, ऐसे होते हैं डक के फीट. ये आपस में ये जो ये टो होते हैं ये ऐसे जुड़े रहते हैं. ओके, सो ये होती है हमारी वाटर बर्ड्स. सिक्स्थ इज सम अदर इंटरेस्टिंग एक्वेटिक एनिमल्स. पफर फिश. पफर फिश इज़ अ फिश हुज बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्पाइंस. स्पाइंस मीन्स जैसे थोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, वैसे ही स्पाइंस से कवर होती है इस पफर फिश की स्किन, पूरी बॉडी. व्हेन इन डेंजर इट स्वैलोज वाटर एंड इन्फ्लेट्स इट्स बॉडी इनटू अ बॉल फुल ऑफ स्पाइंस. जब ये अपने आसपास डेंजर देखती है तो ये वाटर को स्वैलो करती है और इन्फ्लेट्स करती है अपनी बॉडी को. इन्फ्लेट्स बेसिकली अ थिंग और अ सब्सटेंस विच कंटेन एयर, उसे हम इन्फ्लेट्स बोलते हैं, राइट. तो जैसे इन्फ्लेटेड कोई भी थिंग होती है, जैसे बॉल होती है, वैसे ही ये वाटर को स्वैलो करके अपनी बॉडी को भी इन्फ्लेटेड बना लेती है बॉल शेप में, फुल ऑफ स्पाइंस.
कांटे तो लगे ही होते हैं इसकी बॉडी पे, तो ये ऐसे बोल शेप बना लेती है, तो इसके आसपास कोई भी खतरा नहीं आ सकता। इसे हम बोलते हैं पफर फिश। इलेक्ट्रिक रे इज़ अ फिश दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट इन अ डीप सी। दिस लाइट हेल्प्स इट्स टू फाइंड इट्स वे एंड फूड। जो इलेक्ट्रिक रे फिश होती है वो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को एंड लाइट इन द डीप सी, और उस लाइट की मदद से वो अपना रास्ता फाइंड आउट करती है और अपना फूड फाइंड आउट करती है। इलेक्ट्रिक रे इज़ अ काइंड ऑफ फिश। सी हॉर्स इज़ नॉट अ हॉर्स बट अ फिश। इट्स हेड इज़ लाइक अ हॉर्स। इट इज़ द स्लोवेस्ट मूविंग एक्वेटिक एनिमल्स। स्लोवेस्ट मूविंग एक्वेटिक एनिमल्स कौन सा है? सी हॉर्स। ये एक तरह की फ़िश होती है, भले इसका नाम हॉर्स है, डोंट बी कन्फ्यूज। सी हॉर्स इज़ नॉट अ हॉर्स बट अ फिश। सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। जैसे पफर फिश, इसकी पूरी बॉडी पे स्पाइंस लगे होते हैं और ये खुद को बोल शेप में ऐसे बना लेती है जब भी आसपास हमें डेंजर दिखती है। इलेक्ट्रिक रे जो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट जनरेट करती है वाटर के अंदर। सी हॉर्स जो एक स्लोवेस्ट मूविंग एक्वेटिक एनिमल है, राइट। नाउ वाटर पोल्यूशन अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। वाटर पोल्यूशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन: डिस्पोजल ऑफ सीवेज फ्रॉम सिटीज़ इनटू द वाटर, डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री इनटू द रिवर्स, एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स इनटू सी वाटर। जो सीवेज डिस्पोज होता है सिटी से रिवर के अंदर, हार्मफुल वेस्ट इंडस्ट्री से रिवर के अंदर जाता है और एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स सी वाटर के अंदर डाले जाते हैं, उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो खतरे में आ जाती है। एक्वेटिक एनिमल्स को उनसे नुकसान होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। वाटर पोल्यूशन इज़ अ बिग थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। ऑल वेस्ट सच एज डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर सेंट इनटू द रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक। जितना भी वेस्ट होता है उसे पहले ट्रीट करना चाहिए, मींस उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, फिर उस वाटर को ड्रेन कर देना चाहिए। किसमें? वो सी वाटर में। अगर उसमें से हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस रिमूव हो जाएंगे तो उससे ज़्यादा खतरा नहीं आएगा एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। दिस विल रिड्यूस वाटर पोल्यूशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वी शुड हेल्प टू सेव अवर एक्वेटिक लाइफ। हमें कभी भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, कभी भी पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। जो सी वाटर होते हैं, ओशंस, लेक, इन सबको कभी भी पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। टुडे वी लर्न अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रूट फ्लोटिंग प्लांट एंड सबमर्ज प्लांट। हमने डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, फिश, क्रस्टेशियंस, एक्वेटिक मैमल्स, amphibians, water birds, and some interesting aquatic animals like puffer fish, electric ray, and seahorse. So this is all about your chapter. Now you have to read this chapter. Okay, so thank you and take care.